Hi everybody. So today we are talking about landing pages. I know you've seen a lot of cookie cutter landing pages. It feels like everything has been done before, and the pressure to convert can suck the fun out of creativity. I feel you. Today brands have entirely flipped the script and they're turning those landing pages into beautiful mini movies. And now it's more about setting the mood rather than doing hard selling. Nobody wants to see those boring bullet points. So today we are going to talk about landing pages. So before I begin this video, I just wanted to share quickly whatever I'm going to cover in this video. So one, I'm going to share my favorite ChatGPT prompts. These are not just any basic prompts. These are my favorite ChatGPT prompts that I use often. And then I'm also going to share with you those beautiful landing page designs from my Swipe files. We are going to cover what are those elements that are common in those pages, what makes them so beautiful and at the same time high conversion pages. So we are going to cover that also. And there's a lot more. I'm also going to share with you one AI tool. With the help of that, you can also create a landing page. You're going to get an idea, and that's one amazing tool that we are going to cover. And there's a lot more, so just stay tuned for that. Now, what is landing page? Landing page is where user attention meets business goals, right? So the idea behind landing page is to get as many people as possible to perform a specific action, right? That action could be anything. It could be clicking a button, purchasing something, or downloading an ebook. Maybe you want them to give their email address, or collecting the leads, collecting the email address. The action could be anything. Now, sure, if you're a freelancer or a digital marketer, you must be thinking in your head that we can get this work done from outside, we can outsource this work. But let me tell you one thing here. Whoever has worked with a web designer in their life, they know exactly what I'm talking right now. You have to convey them things. If you ask a web designer to design a landing page, they would just say that show us and we will design the exact same thing. They want the things to get communicated. Sure, they must be good with the designing part, but there are only few designers who know exactly what works needs to be done. Okay, you have to show them exactly the sample, that the work that you're looking for. So this is where the work of the strategist comes into play. So as a digital marketing strategist, whenever we work in our team, we have to convey them, because landing page is not just about designing. It involves so many things. There are so many elements that are important, because here we are talking about conversion. We are not talking about beautiful things. Of course, that's a part of the plan, but here we want the conversion. So there are so many important elements that are responsible for the same. We are going to cover that, okay? But first, let's understand why we need landing pages. When I started my digital marketing journey, I used to work on projects and I used to create a lot of landing pages on Elementor. People who use WordPress, they know what I'm talking about, Elementor plugin, right? So when I started my digital marketing journey, I used to work on small projects single-handedly. I used to design the website, I used to write content for the same, do the email marketing, everything. Like that's how you get started, right? I used to create pages on WordPress, Elementor. And just because of the fact that I've learned designing landing pages in the past on WordPress, I know a lot of things and I can convey those things properly to a web designer, because I know without that, I don't think so I would be able to get the result. So that is why it's important to learn how to create a landing page also. And if you're a marketer and you're working for a client, you would need those landing pages in your entire marketing journey. Okay, so when we talk about a website, what do we do on a website? We educate our audience about our brand, right? We talk about a lot of things, about our team, about the blogs, everything, right? It's basically to educate your audience. The goal is broader. It's a broad goal. But when it comes to landing page, we are specifically looking for conversion, for targeted thing, right? For targeted conversion. We want them to take an action. So let's suppose a real estate agent, he wants to sell a property at some specific location. So yeah, he's going to make the landing page for that specific location, right? So that is very, very targeted. That is hyper segmentation. Okay, now let's quickly talk about the landing pages. Very important. You should know like why you're learning this. So it shortens the sales cycle. So when a visitor comes on a website, he is not clear with the goal. He doesn't know what to do. He will just come for the entertainment, he'll absorb the information and leave, right? But when he comes on the landing page, the content is delivered to him in such a way that he's persuaded to take an action.
that is our goal, right? So it is going to shorten our sales cycle. Then you can also tell your brand story through that landing page. You're also going to use the long tail keywords on your page for SEO purpose, right? Then you can also do the A/B testing of elements, right? You can test your headline, you can test your above the fold section through heat maps. That can also be done through landing page. Then it reduces the decision fatigue. You are serving them limited content related to that particular product or a particular action you want them to take. So a lot of chaos is already removed. So there will be less confusion and the decision fatigue would not be there. And then you're going to need the landing pages for the ads. Whenever you're going to create an ad where you want your audience to land on the landing page. So you would require the landing page if you're creating ads or product launches. Landing pages are everywhere. It's quite essential now. When you want to create a landing page, you have to go through certain steps. ये कुछ steps हैं, बहुत easy हैं, जल्दी से इसको एक बार go through करते हैं, then we'll talk about the elements. पर ये जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले गोल डिफाइन करो अपना. आप जो बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो? Why you creating that landing page? क्या चाह रहे हो आप उस लैंडिंग पेज से? आपका कोई गोल होगा ना. आप चाह रहे हो कि जो भी विजिटर आए वो या तो ये ई बुक डाउनलोड करे या फिर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे, राइट? तो वो एक गोल होगा ना स्पेसिफिक. तो एक ही गोल रखना, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ताकि वो जल्दी से एक्शन ले पाएं और डिसीजन फिटीक ना हो, कंफ्यूज्ड ना हो. ठीक है, तो पहले गोल डिफाइन कर लो. दूसरा स्टेप है नो योर ऑडियंस. किसको बेचनी है आपको वो चीज़? आपको अगर पता नहीं होगा कि आपकी कौन सी ऑडियंस है तो आप कंटेंट कैसे बनाओगे? आपको उसी के अराउंड कंटेंट बनाना होगा ना. जो ऑडियंस आपकी क्या चाह रही है, उनका पेन पॉइंट क्या है, उनको अंडरस्टैंड करना, उनका एज, जेंडर, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, राइट? वो आपको हाइपर सेगमेंट टारगेटिंग करनी है, हाइपर सेगमेंट ऑडियंस लेके चलना है. सबको नहीं बेचना है. यू डोंट हैव टू गो ब्रॉड विद दैट ऑडियंस. गो वेरी वेरी स्पेसिफिक. तो आपको अपनी ऑडियंस पता होना चाहिए. सो अपनी ऑडियंस को पहचानने के लिए या तो आप बायर पर्सोना टूल यूज़ करिए. बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी ऑडियंस को पहचानने के लिए, या फिर आप अपने कंपटीटर का रिसर्च करिए, उनका एनालिसिस करिए. सो ऑलवेज नो योर ऑडियंस बिफोर क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज. थर्ड जो हमारा स्टेप है दैट इज क्राफ्ट योर ऑफर. आपको एक ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा. यू आर फाइटिंग विद मेनी अराउंड यू, राइट? यू आर सेलिंग अ सर्विस, जो बहुत सारे लोग सिमिलर सर्विस दे रहे हैं. तो अगर आपका ऑफर सॉलिड नहीं है, सामने वाला नहीं खरीदेगा. सो कैसे आपको वो क्राफ्ट करना है वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप ऑफर तो हर जगह लेके जाएंगे, राइट? आपको कहीं भी बेचना है मार्केटिंग में तो आपको एक ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. उसके बाद आता है अपनी कॉपी लिखना, डिज़ाइन करना पेज लेआउट को. इमेजेस हाई क्वालिटी होने चाहिए. मेक श्योर करना स्टॉक इमेजेस नहीं यूज़ करो, यूज़ रियल इमेजेस. नेक्स्ट स्टेप इज ऐड ट्रस्ट एलिमेंट्स. जितने भी लैंडिंग पेजेस मैंने स्वाइप फाइल में सेव किए हैं, अपने डॉक में सेव किए हैं, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उनमें मैंने कॉमन एलिमेंट्स देखे हैं. उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे. तो इसके बाद वही बात करने वाले हैं. देन आपके लैंडिंग पेज में स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस होने चाहिए. ठीक है, बटन्स आपको यूज़ करने हैं. जहाँ पे भी आपको लगे वहीं बटन यूज़ करना है. ओवरडू नहीं करना है और अंडर यूज़ भी नहीं करना है. ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल. आप डिवाइस, आप डेस्कटॉप पे अपना लैंडिंग पेज दिखाना चाह रहे हैं या मोबाइल पे दिखाना चाह रहे हैं, जैसे भी आपको ऑप्टिमाइज करना है वो डिवाइस. देन क्रिएट योर लैंडिंग पेज एंड टेस्ट एवरीथिंग. ये बहुत ज़रूरी होता है, A/B टेस्टिंग लैंडिंग पेज के लिए. या तो आप फ्री टूल यूज़ करिए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, या फिर आप हॉटजार का ले लीजिए पेड प्लान. आपको चाहिए होगा कि जो भी आप हेडलाइन यूज़ कर रहे हो दैट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट. हीट मैप से वो पता चलेगा कि कितने लोग स्पेसिफिक अगर आपने कोई बटन दिया हुआ है, एक्शन कॉल टू एक्शन बटन है, उस पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोगों ने खोल के देखा, राइट? वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. अगर आपको A/B टेस्ट करना है देन यू हैव टू यूज़ द टूल्स फॉर दैट. अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में. अब आई कुड हैव कम अप विद 100 एलिमेंट्स, बट मुझे नहीं लगा उसकी नीड. जो मुझे उन लैंडिंग पेजेस में वो सबसे बेस्ट लैंडिंग पेजेस हैं, ठीक है, वो मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है. उसके बाद जो मुझे कॉमन एलिमेंट्स लगे, जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे पेन डाउन कर दिया है, नोट डाउन कर दिया है. तो उसके बारे में आप बात करते हैं. सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ हीरो सेक्शन. ये जो सेक्शन है सबसे पहले आपका विजिटर देखेगा. अब इस हीरो सेक्शन में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका सॉल्यूशन क्या है, क्या पेन पॉइंट आप ऑडियंस का सॉल्व कर रहे हो और आपका सॉल्यूशन क्या है, और उसके साथ कॉल टू एक्शन बटन. ये जो हमारा सेक्शन है ये सबसे पहले ऑडियंस हमारी देखती है. तो हीरो सेक्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है. दूसरा एलिमेंट है माइक्रो इंटरैक्शंस. आपने देखा होगा लैंडिंग पेजेस पे आजकल स्क्रोल एक्टिवेटेड एनिमेशंस बहुत चल रहे हैं. व्हेनेवर यू स्क्रोल ना, तो वो एक एनिमेटेड वे से टेक्स्ट को दिखाया जाता है. तो वो बहुत कॉमन है. माइक्रो इंटरैक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है. देन देर इज अबव द फोल्ड ऑप्टिमाइजेशन. अब विजिटर अगर आपके लैंडिंग पेज पे आता है
बिना स्क्रॉल किए उसको जो भी कंटेंट दिखता है दैट इज अबव द वर्ल्ड ऑप्टिमाइजेशन। जो कंटेंट वो बिना स्क्रॉल किए सबसे पहले देखता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना, राइट। देन गेज प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैंने अभी देखा है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। लेट मी शो यू एन इमेज। ये आप सामने देख रहे हो, देयर इज दिस पर्सन जो बिल्कुल सामने दिख रहा है एंड देयर इज दिस पर्सन जिसका साइड प्रोफाइल है। अब गेज का मतलब है वो गेज कर रहा है वो कॉल टू एक्शन वाले बटन पे, जो बटन आपने दिया है, जो आप चाह रहे हो कि सामने वाला विजिटर उस बटन पे क्लिक करे उसको, तो वो ये वाला जो पर्सन है उसकी तरफ गेज करेगा। इससे क्या होगा, हमारे कन्वर्जन पे फर्क पड़ेगा। द पर्सन, वो जो विजिटर का अटेंशन है उधर ले जाएगा। तो ये एक प्रिंसिपल है जो बहुत कॉमन है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो रादर देन यूजिंग द स्ट्रेट प्रोफाइल, वो साइड प्रोफाइल, गेजिंग प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं ना, गेज करना, तो वो गेज कर रहा है उस बटन की तरफ, तो उससे भी कन्वर्जन पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट वन इज वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस की जब बात होती है तो आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा स्पेस रखनी है कि वो ऐसा लगे कि बिल्कुल खाली है और बहुत वियर्ड लगे, और ना ही आपको उसको बहुत फिल अप करना है, स्पेस को बहुत क्लटर्ड नहीं करना है कि वाइट स्पेस दिख ही नहीं रही है, राइट। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ओवर यूज भी नहीं करना है, अंडर यूज भी नहीं करना है। तो वाइट स्पेस का आपको ध्यान रखना है। देन देर इज एफ पैटर्न लेआउट, या कुछ पैटर्न्स होते हैं जब रीडेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो जो एफ पैटर्न है वो काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। जैसे क्या होता है, हमारी आई की मूवमेंट होती है लेफ्ट टू राइट, इट्स ईजियर टू स्कैन द कॉन्टेंट, राइट। तो इसीलिए एफ पैटर्न पे ज़्यादा फोकस होता है। देन देर इज मिनिमलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन फ्री डिज़ाइंस। लाइक आई सेड, आपको बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं भरना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप डिज़ाइंस नहीं यूज़ करने हैं। गो विद मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस, बट टाइपोग्राफी एंड ऑल का ध्यान रखना है। देन हैबिट फॉर्मिंग ट्रिगर्स एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हैबिट फॉर्मिंग ट्रिगर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। उन ट्रिगर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे एक्सटर्नल कैसे हो गया, अगर आपका विजिटर आ रहा है ऐड के थ्रू, दैट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर। या फिर अगर आपका विजिटर आ रहा है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, आपको पता चलेगा ना, जब लोग आपके पास आएंगे, आप पूछते हो उनसे आपको कैसे पता चला, या यू आस्क देम टू फिल अ फॉर्म, जैसे भी आपको डेटा मिलता है यू गेट इट कि ओके मेरा जो मोस्ट अमाउंट ऑफ बिजनेस है वो यहाँ से आता है, इस चीज़ से आ रहा है, इस रेफरल से आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर लेट्स सपोज वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है, सोशल प्रूफ से आ रहा है, तो आप उस फैक्टर को ज़्यादा लेवरेज करोगे, वो ज़्यादा यूज़ करोगे अपने लैंडिंग पेज पे। तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स इमोशंस हो सकते हैं, स्कैर्सिटी, फियर, राइट। तो ये इमोशंस को आपको यूज़ करना है अपने कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है, टू ऑप्टिमाइज द स्पीड ऑफ योर लैंडिंग पेज। मतलब हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अगर हमारा पेज ही स्लो लोड हो रहा है तो आपको उसके अपनी वेबसाइट की स्पीड का, अपने लैंडिंग पेज की स्पीड का खासा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है स्कीमेबल कंटेंट। जो भी हमारा कंटेंट है वो इजीली स्कैन होना चाहिए। इमेजेस हैं तो इजीली रीड करने लायक होनी चाहिए, राइट। रीडेबिलिटी फैक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, इजी टू रीड चीज़ें होनी चाहिए, क्लटर नहीं चलेगा। देन कम्स डायनेमिक सोशल प्रूफ। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स का देखा होगा, अगर वो कोई कोर्स बेच रहे हैं, आप जैसे उनकी वेबसाइट पे जाओगे नोटिफिकेशन दिखता है कि सो एंड सो पर्सन जस्ट बॉट द कोर्स। क्या है वो? सोशल प्रूफ है। पहले सोशल प्रूफ चलते थे स्लाइडर में, वो बोरिंग वेज ऑफ शोइंग द सोशल प्रूफ। फिर वीडियोस तो ऑफकोर्स एवरग्रीन है ही, बट अभी आजकल चल रहा है डायनेमिक सोशल प्रूफ, काफ़ी टाइम से चल रहा है और वो वर्क भी कर रहा है। इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन, एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। बहुत सारे लोग अब इसको फेक भी प्लगइन्स यूज़ करके भी कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर जेन्युइनली शोइंग द रियल डेटा। तो अगर आपको यूज़ करना है, इन प्लगइन्स को हम बोलते हैं, अगर आप वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बना रहे हो तो फोमो प्लगइन्स करके आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। इसको बेसिकली हम फोमो फैक्टर बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये अगर आप एलिमेंटर पे लेट्स सपोज पेज क्रिएट कर रहे हो तो आप ये वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हो। तो डायनेमिक सोशल प्रूफ इज़ द न्यू ट्रेंड। उसके बाद आता है हमारी कलर थ्योरी, इमेज प्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला, अगर आपको नहीं भी पता गूगल पे जाके देखो, हर एक कलर का इम्पैक्ट है। क्या ब्रांड कलर्स यूज़ कर रहे हो, टाइपोग्राफी क्या यूज़ कर रहे हो, फॉन्ट्स, इमेजेस, राइट, सबका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो काफ़ी रोल प्ले करता है। देन डायरेक्शनल क्यूज़, आप देखोगे आजकल बिल्कुल भी वो नहीं चल रहा। आजकल इट्स ऑल अबाउट बेयर बॉर्न एस्थेटिक्स।
ओवरली पॉलिश डिज़ाइंस नहीं चलते हैं। तो आप देखो वो छोटे छोटे क्यूज़ को आप, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही इंस्पिरेशन लेते हैं, नहीं आता ना एकदम से आपके पास क्लाइंट आ जाए और आप नहीं लेके बैठे हो वो डिज़ाइन अब दिमाग में। तो मैं तो बहुत सारे ऐसे मैं स्वाइप फाइल क्रिएट करती हूँ, मुझे जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है सेव दैट, ताकि जब भी काम आए तो आप ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल क्लूलेस हो जाओ। तो आपके पास मटेरियल, आपके पास रिसोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए। देन हाइपर सेगमेंटेशन, जैसे मैंने बोला कि ऑडियंस के लेके आपको थोड़ा हाइपर सेगमेंटेड ऑडियंस ही टारगेट करनी है। आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, निश स्पेसिफिक ऑडियंस है, तो वो ज़्यादा कन्वर्ट होंगी, राइट। वाइट स्पेस की बात कर चुके हैं, इफेक्ट्स की बात कर चुके हैं। अगर एलिमेंटर पे हो तो लॉटी फाइल्स का प्लगइन आता है, वो यूज़ कर लेना वर्डप्रेस पे, तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट। फिर आता है चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्किंग आवर्स में आप नहीं चाहते कि कोई पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर आपके हाथ से निकल जाए। आप जब उनको नहीं रिप्लाई कर पा रहे हो, नॉन वर्किंग आवर्स में हो, तो एटलीस्ट कुछ कन्वे हो जाना चाहिए। जैसे जोमेटो पे आपने देखा इनिशियली तो वो लोग करते थे, अगर आप रिफंड के लिए मांग रहे हो या कैसे भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, अब कुछ नहीं है। अब नाउ दे हैव स्केल्ड अप, उनको पता है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ दे आर ऑल्सो यूजिंग ऑटोमेटेड रिप्लाईज, जो चीज़ें बार बार सेम रिपीटेडली चीज़ें करनी है, तो उसके लिए चैटबॉट यूज़ करो ना, सो दैट दे कैन स्पेंड द अमाउंट ऑन अदर बेटर थिंग्स। अब जो चीज़ें इतनी मैनुअल है, जो चीज़ें कर पा रहा है एआई, तो वो उसी की हेल्प लेंगे। आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ज़रूरत है या नहीं, राइट। इफ़ इट रिक्वायर्स अ ह्यूमन टच, इफ़ इट रिक्वायर्स अ ह्यूमन पर्सनलाइजेशन, तो आपको करना पड़ेगा, राइट। बट फॉर अदर थिंग्स यू कैन यूज़ द चैटबॉट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस किया है। देन वीडियो प्रोडक्ट डेमो, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका डेमो दिखाओ, ठीक है। उसके साथ भी आपको क्रिएटिव होना है, ऐसे बोरिंग सा बेसिक सा डेमो नहीं लेना है। यू हैव टू गेट क्रिएटिव विद योर वीडियो। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, ठीक है, उनसे करवाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, बट फाइंड सम वेज, यू नो, गेट क्रिएटिव विद, बिकॉज आप जैसे भी एक्सप्रेस कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट। उसके बाद आता है माइक्रो कमिटमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। माइक्रो कमिटमेंट्स में क्या होगा, जैसे आप लेट्स सपोज एक अपने लैंडिंग पेज से चाह रहे हो कि आपको इतने परचेजेस आ जाएं, अगर नहीं आ रहे तो एटलीस्ट कम से कम आप लेट्स सपोज 50 लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हो, 10 ही खरीद पाए, उसमें से 10 लोगों ने ही इंटरेस्ट दिखाया खरीदने में, बाकी 40 का क्या। आप या तो उनको आपको उनका डेटा तो कलेक्ट कर लेना चाहिए ना। आप या तो उनको फ्री ई बुक सेल करो, या फिर कोई माइक्रो सर्वे आप क्रिएट करो, उनका डेटा लो, कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना उस मेहनत का जो आपने क्रिएट किया, लैंडिंग पेज क्रिएट किया। तो माइक्रो कमिटमेंट्स होनी चाहिए। आप ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको डेटा मिलेगा, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी वार्म ऑडियंस को कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर में वो ले लेंगे। अभी नहीं लिया तो फ्यूचर में ले लेंगे, तो वो चलता रहना चाहिए फनल्स के हिसाब से, किस फनल किस पॉइंट पे आपका जो ऑडियंस है वो आया है और कैसे आपको उनको कन्वर्ट करना है। ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो सारी लैंडिंग पेजेस जिनके बारे में बात करी थी। आपको ये वाले जो एलिमेंट्स जो हमने बात किया वो इस पे मिल जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स, एंड दीज आर वर्थ वॉचिंग, ट्रस्ट मी। तो इनको एक बार एक एक करके खोलते हैं। ओके, तो अभी आप ये देखो, ये टेस्ला का लैंडिंग पेज है, बहुत मिनिमलिस्टिक है, बट लुक एट द फॉन्ट्स, लुक एट द कलर्स, राइट। इट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ कलर्स दे हैव एडेड, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। द वीडियो एंड एवरीथिंग, तो मैंने जैसे बोला प्रोडक्ट डेमो की जब हम बात कर रहे थे, तो यू हैव टू शो द वीडियो, okay, and just look at these elements. Again one video. So if you go see, this is the scrolling effect of the text. जैसे आप स्क्रॉल करते हो, तो इफ़ यू सी, जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ये किस तरीके से एनिमेटेड टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स ओपन अनदर पेज। टाइप फॉर्म का बिकॉज मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको, तो मैंने इसलिए इसे यहाँ पे लिख दिया। काफ़ी बेसिक है, बट आई थिंक आई लाइक इट, बिकॉज कभी कभी होता है ना, आपको ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ पे आपको यू हैव टू यूज़ द bare minimum things, क्लाइंट की ऐसी डिमांड होती है। लेट्स सपोज व्हेन वी क्रिएट लैंडिंग पेजेस फॉर डॉक्टर्स, तो आपको बहुत मिनिमलिस्टिक स्टाइल रखना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट इट। तो आप देखोगे यहाँ भी वेरी प्लेन एंड द राइट काइंड ऑफ, आई वॉन्टेड टू शो यू दिस पेज बिकॉज आप देखो यहाँ पे वाइट स्पेस, बहुत बहुत एप्ट वाइट स्पेस है यहाँ पे, ना ज़्यादा है ना कम है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। अभी अगला पेज देखते हैं हम लोग, kikin.io. This I surely love. Like just look at this beauty. It's so unique. The colors है तो ये AI generated image, but क्या फ़र्क पड़ता है? It's looking very nice,
right? It's going with the entire vibe, the entire mood of this landing page. I like the colors, I like this bold font, the supporting text, and the minimal, call to action button. Then there are images. Everything is so cool about it, right? The animation, subtle cues. So this one is very nice. Do check this one out. उसके बाद हम दूसरा देखते हैं. Then there is Relume.io. So if you see here, when I scroll down, how these images are, moving, and how these images are popping out. So this is also good. Like, just look at this text. So whenever the person would scroll, these things do make an impact. So yeah, good, another good page. Then there is Funk. So if you see, I like the colors, and one thing that I really liked about this page was this. Just wherever I'm moving my cursor, so this robot is following that. So this one is very cool. The colors, dark mode again. Many people are using this. Why work? So I like the colors, right? The scrolling effects. Now you see the way I'm doing it and the way these pictures are coming up, the text and everything. These are the things that you have to notice. Okay. अभी मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी वेबसाइट that you will absolutely love, especially beginners जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं. तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा. यहाँ आप जाओगे ना landingpagesexplained.com पे, तो you'll get so many ideas. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाती हूँ ऑल पेजेस पे. नाउ इफ आई वांट टू क्लिक ऑन, लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट अ पेज रिलेटेड टू न्यूज़लेटर्स. ठीक है, तो मैं न्यूज़लेटर का देख रही हूँ. तो इफ़ यू सी हियर, आपको पूरा यहाँ पे ये दिख जाएगा हाउ these people are using the text. आपको बहुत सारे आइडियाज़ इसके अंदर मिल जाएंगे. आई रियली लाइक दिस वेबसाइट. बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. तो ये सब पेजेस फीचर किए गए हैं, तो आप इनसे एग्जांपल्स ले सकते हो कि कैसे आपको एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू गो विद द क्रिएटर्स पेज, तो हम एक पेज खोल के देख लेते हैं. ओके, सो लेट्स ओपन दिस वन. Now if you see at this landing page, why we buy. So you see it's written here, see the content, learn buyer psychology in 3 minutes a week. क्या है, हाउ, कैसे वो क्या लर्न करेंगे और कैसे लर्न करेंगे, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं. सो डू विजिट दिस वेबसाइट, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. Cool, now let's talk about that ChatGPT prompt I was talking about. So there are 2 prompts here. Let's copy paste one of them. Let's copy this one and open ChatGPT. Let's paste here and let me see if everything is fine. Design a groundbreaking landing page for product or service. Let's add one product here for better understanding. Coffee maker. Okay, and let's just write here in this industry. Cool. You can pause the screen and see for yourself the prompt. Now ChatGPT has come up with an answer. Nespresso's limited edition releases. So it has given one example also. We'll see for it. Okay, we'll see the landing page later. So you can take an example. You can ask for more examples. It's not like you have to give a single prompt. You can give multiple prompts. And if you don't know this, my next video is about this only, how to use the prompts properly, because we all have been using ChatGPT the wrong way. So it is very very helpful if you know how to use it right. Okay, so why it worked, sensory appeal. It also gives the reasons, personalization, lifestyle focus, scarcity, giving you the reasons why so and so landing page worked great. Then amplify this approach by 10x, right? Then everything, you just go through this and you will like it. Use as many times as possible. Try for different landing pages, try for different brands, give multiple prompts to ChatGPT, and that is how you get an answer, and it's very very easy. Okay, let's go back now, and the last part and the most fun part, let's open this website. Okay, I've given a prompt here. Let's see. It's just, of course you have to give a better prompt, but I just wanted to show you for the sake of showing. Okay, let's wait. Okay, so it has created a layout for us. Just ignore the content. I just wanted to show you the layout. Okay, that is how you can go about it with the layout thing. So if I want to change the theme, I can also change the theme. Let's make it red. Yeah, you can play around with the theme colors also.
So if you want to go with this one, you can go with this one. So you are getting an idea, right? How it is going to come out. It's more about the layout thing. It's not about the content. You have to be very creative with your content. Do not just rely on the ChatGPT prompt. However, if you know how to use the prompts right, if you don't know, please watch my next video. It is going to be super helpful, the right way to use the prompts. So that's all for this video. I hope you found it helpful. See you next time. Bye. Take care.